In general, in addition to what you already know, this will also help you to understand how to organize your data science problems, or how to even tackle when something is not very clear or not very precisely given to you. This happens many a times in interview. You'll be given a question, and that question is intentionally not solid or precise. It is kept ambiguous so that आप उनको सवाल पूछो. ठीक है, so questions are like, ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको सवाल कौन से पूछने चाहिए, उसका भी प्रैक्टिस आपको करना है. एंड नॉट जस्ट राइटिंग, you have to practice speaking about that. तो अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो to communicate in a data sciencey language, I would say make sure you read out loud the textbook that you're reading, also the sample solutions where you see something which is related to more data science, because the language is little bit different than the normal English language. You'll see some words which are considered as data science jargon, or which will only make sense in the data science domain. Okay, so make sure you get into a habit of speaking data science language. All right. Any questions on the assignment number one? Anyone has any doubts? I see most of you are submitted. Uh, one student, Sheetal Guge, her yeah, her code is not accessible to me, but most of you have submitted. I guess I didn't check everyone's name. It will take some time, but I think most of you have submitted. So if I'm putting a cross sign like this, that means I don't have access to this. So when I click this, I will get a 404 like this. Okay, so this is not how you share. I should be able to access your notebooks. So for example, this one, right? I'm able to access this notebook. I'm able to see what was done. All right. Okay. So anyone has any questions on assignment number one? No, sir. All right. So let's get started. So today's our session number 10, and this is third session for Python. Just a quick question. Is the background very dark? Are you not able to concentrate because of the background? Just tell me. If not, I can remove the background for now. Let me just do that. In fact, let me just change the theme. Let's put a simple light here. Okay, I think this is fine. So that the watermark is not disturbing you all. Okay, so today we are going to talk about very important concept, which is control flow. All right, and you have seen this in some of the code that I had shared earlier. So control flow is when you give set of instructions to tell the computer what to do and when to do. So we took an example of making a tea, and in that recipe we tell what to do, करना क्या है चाय बनाते वक्त. करेक्ट, ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, और करना कब है वो भी हमें बताना होता है. ठीक है, तो उसी को कंट्रोल फ्लो बोलते हैं. चार मेन टाइप के कंट्रोल फ्लोज होते हैं कोई भी लैंग्वेज में, नॉट जस्ट पाइथन. बस बिकॉज वी आर लर्निंग पाइथन, इसलिए हम पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. सबसे पहला होता है सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो, सेकंड कंडीशनल कंट्रोल फ्लो, थर्ड लूप कंट्रोल फ्लो, एंड द फोर्थ वन इज फंक्शन एंड प्रोसीजर कंट्रोल फ्लो. फंक्शन और प्रोसीजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होते हैं. हम लोग जब एग्जांपल्स देखेंगे तब समझ में आएगा और डिटेल में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. आफ्टर दैट we'll try to use all of that in a single use case. ठीक है, तो if you have any questions, make sure you stop me and ask the questions. So we'll start with the sequential control flow. This we have already discussed, but उसको sequential control flow बोलते हैं, ये पता नहीं था आपको. ठीक है, sequential control flow मतलब लाइंस जो होते हैं कोड में आपके जिस तरह से अपीयर होती है टॉप टू बॉटम, वैसे आपका कोड एग्जीक्यूट होता है वन आफ्टर अनदर. तो अगर ये लाइंस प्रेजेंट है आपके कोड में तो पहले ये रन होगा,
फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेम वेरिएबल है, असाइन किया उसको वैल्यू जॉन, एज 25 असाइन की गई है एज को। ठीक है, प्रिंट किया फिर मैंने व्हाट इज द नेम एंड प्रिंट किया मैंने व्हाट इज द एज। ये सब सीक्वेंशियली रन होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज द कंडीशनल कंट्रोल फ्लो। ये नया है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, आपको एक डिसीजन लेना होता है। डिसीजन क्या लेना है कि ये पर्टिकुलर कोड या फिर ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस रन करने हैं या नहीं रन करने हैं, वो डिसीजन लेना है हमें। डिसीजन लेने के लिए कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं पाइथन में, जिनको बोलते हैं इफ, एल्स इफ या एल्स स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल, अगर एज दिया है 17, तो मुझे डिसाइड करना है या तो प्रिंट करो अडल्ट या फिर प्रिंट करो यू आर नॉट एन अडल्ट। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रिंटिंग, ये डिपेंड करेगा एज के वैल्यू के ऊपर। अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 रहेगी, देन यू शुड बी प्रिंटिंग यू आर एन अडल्ट। अगर नहीं, तो आप प्रिंट करोगे यू आर नॉट एन अडल्ट। वेरी सिंपल। So this is an example of conditional control flow. There is a condition. If this condition is satisfied, then this particular code is executed. If not satisfied, then you jump to the else और ये execute होगा। ओके okay? तो if statement के बारे में पढ़ते हैं अभी। तो जैसे थोड़ी देर पहले देखा, दिस इज कंडीशनल कंट्रोल फ्लो। और इफ स्टेटमेंट, तभी इफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है जब इफ स्टेटमेंट के सामने जो भी आपने कोड लिखा होता है, ये एक्सप्रेशन है, राइट। तो ये एक्सप्रेशन एक बुलियन को इवेल्युएट होता है, मतलब या तो इसका वैल्यू ट्रू रहेगा या फिर इसका वैल्यू फॉल्स रहेगा। ठीक है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब इसको इवेल्युएट किया जाएगा, आपको आंसर मिलेगा, या तो ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अगर ट्रू होता है तो ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, अगर ट्रू नहीं होता तो ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। सो दैट इज द इफ स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने एज की वैल्यू दे दी 15, ये एज की वैल्यू यहाँ पर आप 15 दे सकते हो, या फिर आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, या फिर किसी डेटाबेस में पहले से प्रेजेंट हो, डेटाबेस से भी वैल्यू लेके आ सकते हो। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, आपने एक वैल्यू ली है और वो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो। एज जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 15 से ज्यादा, 18 से ज्यादा है क्या, हो तो ये एग्जीक्यूट करना है नीचे का हमें। अगर नहीं, तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये सिंटैक्स है उसका। इफ, यहाँ पर कंडीशन, कंडीशन सिंगल रह सकती है या फिर यू कैन ऐड मोर थिंग्स टू इट। वो ऐड कैसे करना है उसके बारे में जब मैं बात करूंगा, और बुलियन एक्सप्रेशन की, तब फिर से हम लोग रिविजिट करेंगे इसको। लेकिन कंडीशंस जो होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही कंडीशन हो। कंडीशन वन और कंडीशन टू और कंडीशन थ्री और कंडीशन फोर, या फिर एंड कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, ये सब कुछ हो सकता है वहां पे। तो कीप इट सिंपल, लेट्स जस्ट अज्यूम यहाँ पे एक ही कंडीशन है अभी, और वो कंडीशन की ट्रू होती ये प्रिंट होने वाला है। सेम कंडीशनल कंट्रोल फ्लो में एल्स इफ स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, उसको शॉर्ट में ELIF बोलते हैं। ओके, इसका मतलब होता है एल्स इफ, जो अल्टरनेट कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर एडिशनल कंडीशंस को चेक करने के लिए जाता है। सिंटैक्स क्या है, पहले मैं इफ कंडीशन लिखूंगा हमेशा, इफ के बाद ही एल्स इफ आएगा। ठीक है, पहले इफ कंडीशन लिखो, फिर कंडीशन वन। अगर ये कंडीशन वन सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है, तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होता, okay, if this is not true, then you go and check the else if. You will check if this is true. If this is true, then you execute this part. ठीक है, it is always uh, it's always after the if statement, and if this if statement becomes true, this is never executed. Okay, this is not even checked. ये चेक भी नहीं होता। अगर ये if statement एग्जीक्यूट हो गया एक बार, तो इसके अंदर का कोड चेक भी नहीं होता, ये
सीधा ये रन कर देगा और फिर उसके बाद में एग्जिट कर देगा यहाँ से। अगर आपने इफ स्टेटमेंट लिखा तो एल्स इफ लिखना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। एल्स इफ कैन बी ऑप्शनल। यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल एल्स इफ, जैसे कि ये यहाँ पर एक स्कोर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, स्कोर इज इक्वल टू 85। तो मैं चेक करूंगा यहाँ पर, अब ये स्कोर 85 तो यहाँ पे दिया है, हो सकता है मैं यूजर से इनपुट लूँ या फिर किसी के रिपोर्ट कार्ड से रीड करूँ। और ये कोड क्या कर रहा है, सबसे पहले चेक कर रहा है, ठीक है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 90, अगर 90 से ज्यादा है तो आई एम गोइंग टू प्रिंट यू गॉट एन ए। एल्स इफ, ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये स्कोर ग्रेटर देन 90 नहीं होता, विच इज ट्रू इन दिस केस, राइट, then you go and check if the code is greater than equal to 80. If yes, then you print you got a B. अगर 70 से ज्यादा स्कोर है then you got a C. So this is how you use a else if statement. ठीक है, if रहेगा, फिर else if रहेगा, फिर मल्टीपल else if हो सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज पहले ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू हुआ तो ये रन होगा। ठीक है, देन इट विल, यू विल नेवर गेट इनटू अदर अदर कंडीशंस। ठीक है, if this is true, then this will get executed and rest of the things are not going to get executed. Okay, so this is else if statement. All right, syntax else if statement आपको ट्राई करके देखना है। ठीक है, थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको प्रिंट उसको लिखना है। Finally, this is the else statement, again part of conditional control flow. Syntax बहुत सिंपल है, if कंडीशन वन ट्रू होती है, नहीं तो फिर else if में जाओ। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, नहीं तो फाइनली else में जाओ। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, इफ नन ऑफ दीज इज ट्रू देन द एल्स कोड इज एग्जीक्यूटेड। ओके, चेक द कंडीशन, इसको कंडीशनल कंट्रोल फ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल एल्स का हमने पहले यहाँ पर देख लिया, ये सब कुछ फॉल्स हो गया, तब ये एल्स वाला प्रिंट हो गया। करेक्ट, यू डिडंट इवन स्कोर ग्रेटर देन 60, दैट मींस यू गॉट अ एफ ऑन योर टेस्ट। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर कोड इज टेलिंग यू। यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, ये एलसीएफ में प्रिंट क्या होगा, स्कोर कितना है You got an 85, A. यू गॉट एन, You got an B. यू गॉट एन बी प्रिंट होगा। B. ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले ये एग्जीक्यूट, ये पहले चेक होगा, स्कोर इज ग्रेटर देन 90, no it is not, it is 85, right? So you go to the statement, score is greater than 80, yes it is greater than 80, your score is 85, then you will print you got a B. okay, फिर नीचे का कुछ एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। एक और कंडीशन, एक और एग्जांपल यहाँ पे एज का, एल्सिफ का, जैसे मैंने बोला था एल्सिफ जो है वो ऑप्शनल है, यू डोंट इवन हैव टू यूज इट इफ यू डोंट नीड इट। यहाँ पर इफ और एल्स यूज किया है। इफ कंपलसरी है, अगर आप एल्स इफ या फिर एल्स यूज करना चाहते हो तो इफ इज कंपलसरी, यू हैव टू हैव अ इफ स्टेटमेंट, ओनली देन यू कैन हैव अ एल्स इफ एंड और एल्स। एज इज 15, if age is greater than equal to 18, then this block of code is getting executed. If not, then this block of code is getting executed. In this particular example, what is going to happen? Else will be executed, right? Because your age is less than 15, less than 18. Correct. So before we move ahead, just put a question here. I am telling you age is equal to number is equal to 12. ठीक है, और height code is given। तो इवन के लिए कोड चेक करना है, इफ कंडीशन क्या रहेगा और एल्स कंडीशन क्या रहेगा। ठीक है, अगर इवन रहेगा तो प्रिंट करना है आपको इट इज इवन,
या फिर प्रिंट करना है आपको, इट इज ऑड. टेक सम टाइम एंड मे बी आपके नोटबुक में पहले साइड में लिखो, फिर यू कैन सेंड अ मैसेज हियर सो दैट एक 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 सेंटेंस में. जस्ट गो टू योर नोटपैड या लाइक दिस. नोटपैड ओपन करो, यहाँ पर लिखो इफ व्हाट आर द कंडीशन इज, फिर टैब देना है, फिर प्रिंट करना है यहाँ पर, अभी जो भी प्रिंट करना है, एल्स whatever you want to print here. Correct, this is what you have to do. Notepad में लिख के you can just send it here. Shital, you have to send me the details. Okay, you are the only one who is remaining. These details, your Gmail address and your Kaggle account. Okay. Yes, sir. Yeah. Right. Is everyone attempting? करेक्ट. सिर्फ ये जो राउंड ब्रैकेट्स ये नहीं देना है, ठीक है. सो पाइथन में विल ट्राई टू कीप एज मच लेस और लेस वर्बोस एज पॉसिबल. ओके, कोड आपका जितना कम वर्बोस हो उतना अच्छा होता है. और यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है. रुचिर, you need a semicolon here, you need a sorry, you need a colon here and you need a colon here. Yes, sir. Yeah. What about others? और ये टैब भी नहीं है, यहाँ पर टैब चाहिए, राइट. सो दिस हैज टू गो इन अ टैब. इंडेंटेशन करना है आपको हमेशा. इंडेंटेशन करने से पता चलता है कि दिस इज पार्ट ऑफ करेक्ट. ऐसे इंडेंटेशन करना है. यहाँ पर इफ के बाद में कोलन डालना है, ये कोलन यहाँ पर भी मिसिंग है, और टैब डालना है आपको ऐसे. ओके, करेक्ट. If you are facing difficulty in understanding indentation part, get in touch with me. I'll explain you again. बट ये इंडेंटेशन करना ही आपको, उसके सिवा कोड नहीं होगा एग्जीक्यूट आपका ठीक से. इंडेंटेशन से पता चलता है कि क्या कोड किसके अंदर है. एवरीवन हैज टू सेंड. योगिता, कोड सेंड करो आपका. प्रमोद, प्रमोद सेंड द कोड. निहारिका, सेंड द कोड. ये दिस इज इनकरेक्ट. ओके, कर्ली ब्रेसेस नहीं देने आपको. अक्षत, दिस वन हैज टू बी अ फॉरवर्ड स्लैश. And there is no printf here. That's in Java. System.printf. I think it's in C. But yeah, printf नहीं होता. प्रिंट होता है सिर्फ.
एवरीवन एकता। ऑलराइट, आई थिंक यू गाइस गेट द आइडिया, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडीशनल कंट्रोल फ्लो। अभी हम लोग लूप कंट्रोल फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। लूप कंट्रोल फ्लो क्या होता है? जब हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है, तब हम लोग लूप कंट्रोल फ्लो यूज करते हैं। ठीक है? वो लूप तब तक एग्जीक्यूट करना होता है, या फिर वो कोड ऑफ ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट करना होता है जब तक कोई सर्टेन कंडीशन मीट नहीं होती। ठीक है, और पाइथन में दो टाइप के लूप कंट्रोल्स है। एक है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। ठीक है, यहाँ पर दो कंट्रोल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर्स, ये क्या है? लिस्ट। लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। लिस्ट ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें करना क्या है? वी हैव टू गो वन बाय वन। पहले वन को विजिट करना है, फिर टू को विजिट करना है, फिर थ्री को विजिट करना है, फिर फोर को, फिर फाइव को। ठीक है, वन बाय वन हमें विजिट करके प्रिंट करना है नंबर को। तो फॉर नम इन नंबर्स, सो दिस इज हाउ यू लूप ओवर द लिस्ट। ठीक है, फॉर नम। नम मतलब एक वेरिएबल। ये वेरिएबल कहाँ पर है? नंबर्स के अंदर है। ठीक है, सो दीज आर माय नंबर्स। ओके, सो दिस नम, फर्स्ट टाइम इट विल बी वन, देन इट विल बी टू, देन इट विल बी थ्री। ये कोड को रन करके देखना है आपको। यू विल गेट टू नो व्हाट इट इज डूइंग। ओके, तो लूप में हमें प्रिंट करना है ऐसे। एक और तरीका क्या है? मैं प्रिंट लिखूंगा नहीं, प्रिंट 5 बार लिखूंगा और वो सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, वन 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 वन, प्रिंट नम वन नम टू नम थ्री, ऐसे सारे प्रिंट करूंगा वन बाय वन। लेकिन अगर मुझे लूप में करना है, कम कोड लिखना है, तो ऐसे में लूप में करूंगा। ठीक है, ये कब तक एग्जीक्यूट होगा ये लूप? जब तक ये सारे नंबर्स खत्म नहीं हो जाते। जब आई स्टार्ट विथ वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर खत्म हो गया लिस्ट मेरा, एंड आई एग्जिट दिस फॉर लूप। अनदर एग्जांपल व्हाइल लूप का कैसे? काउंट इज इक्वल टू वन। ठीक है, और मैं काउंट की वैल्यू जब तक 5 से कम है तब तक प्रिंट करते जाना है मुझे। ठीक है, आई कीप ऑन प्रिंटिंग। और एट एवरी एट एवरी प्रिंट आई एम इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू। मैं काउंट को एक से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। काउंट प्लस इज इक्वल टू वन का मतलब होता है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। ठीक है, मतलब काउंट को एक से बढ़ाओ। पहले काउंट वन था, फिर वन प्रिंट हो गया, फिर अभी काउंट टू हो गया, फिर टू प्रिंट हुआ। यहाँ पर चेक किया जाएगा, इज काउंट ग्रेट लेस देन फाइव? यस इट इज लेस देन फाइव, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करो। नेक्स्ट टाइम इज काउंट लेस देन फाइव? यस इट इज लेस देन फाइव, फिर से प्रिंट करो। ठीक है, कीप ऑन प्रिंटिंग अंटिल एंड अनलेस दिस कंडीशन इज नॉट मेट। ठीक है, जब तक ये कंडीशन नहीं मीट होती, या फिर जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक हमें ये प्रिंट करते जाना है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में क्या होगा? जब मैं एक एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, एक बार ऐसा आएगा जब वैल्यू इसकी फाइव फाइव से बड़ी हो जाएगी, एंड इट विल एग्जिट। ठीक है, जस्ट शो यू एन एग्जांपल। काउंट वन। ठीक है, ये मेरा कोड है वाइल। तो मैंने प्रिंट किया, सबसे पहले वन प्रिंट हुआ, फिर टू प्रिंट हुआ, फिर थ्री प्रिंट हुआ, फिर फोर प्रिंट हुआ, फिर फाइव प्रिंट हुआ। ओके, तो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो गया जब तक काउंट की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती तब तक। अभी अगर मैं काउंट को देखूंगा कितना है, तो 6 आएगा वो, क्योंकि वो यहाँ पे प्लस वन से इंक्रीमेंट किया जा रहा हूँ मैं हमेशा। ओके, सेम केस फॉर लूप के लिए कुछ ऐसे होगा, 1 2 3 4 5। करेक्ट, वन बाय वन मुझे प्रिंट करना है सबको। फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में और। तो जैसे बोला गया था थोड़ी देर पहले, फॉर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर अ लिस्ट या फिर एक सीक्वेंस। जनरली उसको बोलते हैं
इटरेबल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप इटरेशन कर सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। ऐसे कौन से डेटा टाइप से पाइथन में? लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, और रेंज है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और दीज आर सम ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, आप इटरेबल ऑब्जेक्ट खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, बट अभी के लिए जस्ट रिमेंबर कि यू कैन डू अ फॉर लूप ऑन लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, या फिर रेंज। रेंज मतलब 0 से 2, 2 से 30, 30 से 3000, या फिर जो भी ऐसे रेंज आप डिफाइन कर सकते हो। रेंजेस यूज किए जाते हैं यूजली, तो उसके ऊपर आप इटरेट कर सकते हो। सिंटैक्स, फॉर लूप लिखना है, आइटम लिखना है, इन सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है? लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर रेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे कोड का ब्लॉक। रेंज का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। रेंज फंक्शन क्या करता है? एक सीक्वेंस जनरेट करता है नंबर्स का। फॉर नम इन रेंज 1, 6। 1, 6 का मतलब होता है 1 से लेके 6 के पहले तक। ठीक है, 6 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा रेंज में। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 6। 6 के पहले तक जितना भी है वहां तक, 5 तक समझ लो। ठीक है, दैट इज हाउ यू राइट द रेंज। रेंज फंक्शन ऐसे यूज किया जाता है। तो फॉर नम इन रेंज 1 to 6, जब ऐसे लिखा जाता है तो ये 6 इंक्लूड नहीं रहता, 5 तक ही रहता है। ये प्रिंट करना है वैल्यूज आपको, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। इंडेंटेशन सही करना चाहिए आपको। पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3, 4, 5। 6 इंक्लूडेड नहीं रहता रेंज में। अगर मैं रेंज देखूं तो दिस इज हाउ इट लुक्स। रेंज 1, 6, तो ऐसे दिखता है ये। अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये लिस्ट दिखा देगा मुझे कैसा रहता है। दिस इज द लिस्ट। लिस्ट तो आपको पता है, लिस्ट। ठीक है, अगर मैं रेंज को कन्वर्ट करता हूँ लिस्ट में तो ये ऐसे दिखता है, 1, 2, 3, 4, 5। कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिस्ट लिया, ओपन ब्रैकेट किया राउंड, क्लोज ब्रैकेट राउंड, उसके बीच में मैंने रेंज को रख दिया। देन दिस हैज कन्वर्टेड दिस रेंज इनटू अ लिस्ट। एक्सपांड कर दिया उसने रेंज को। सिमिलरली वाइल लूप। वाइल लूप थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर लूप से, जहां पर हम लोग सीक्वेंस के ऊपर जाते थे। वाइल लूप में कंडीशन चेक होती है। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक प्रिंट करते रहो। जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है काउंट 1 से शुरू किया मैंने, जब तक मेरा काउंट 5 से कम है तब तक प्रिंट करते रहो। काउंट को बढ़ाते रहो एक एक से। ठीक है, काउंट एक एक से बढ़ते रहेगा और ये प्रिंट होते रहेगा। कब तक प्रिंट होगा? जब तक ये वाइल लूप फॉल्स नहीं बन जाता तब तक। ओके, जैसे ही ये फॉल्स हो जाता है हम लोग एग्जिट कर जाते हैं इसको। एनी क्वेश्चंस? सर, यस। रेंज में लास्ट आइटम क्यों एग्जीक्यूट नहीं होता? 1 to 6। हाँ, वो फंक्शन में क्या होता है, लास्ट आइटम इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप वो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन देखोगे पाइथन के डॉक में, टेल यू दैट रेंज फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, फंक्शन कैसे लिखा गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। उसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देखेंगे। तो कभी भी अगर आपको कुछ भी देखना है फंक्शन के बारे में या फिर पाइथन के बारे में पढ़ना है, तो आपको इनबिल्ट, सॉरी, आपको पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ही जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। स्टैक ओवरफ्लो पे नहीं जाना है, W3 स्कूल्स पे नहीं जाना है, किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना है, सिर्फ पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाना है। उसका वेबसाइट होता है docs.python.org। ठीक, गूगल सर्च करता हूँ, तब मैंने स्क्रॉल डाउन किया जब तक मुझे वो डॉक्स वाला लिखता नहीं है। ठीक है, ये डॉक वाला दिखा मुझे, मैं वहां आया। फिर यहाँ पर रेंज है फंक्शन, तो इस पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, तो ये आपका रेंज है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देता है ये आपको। और ऑल इट डज इज यहाँ से स्टार्ट
और स्टॉप तक, ठीक है। दिस इज हाउ यू कॉल योर रेंज फंक्शन। यहाँ पे दो पैरामीटर्स जाते हैं, एक है स्टार्ट, दूसरा है स्टॉप। या फिर सिर्फ स्टॉप भी दे सकते हो, अगर आप सिर्फ स्टॉप देते हो तो वो जीरो से शुरू होता है, ठीक है। स्टॉप इज नॉट इंक्लूडेड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। स्टॉप से छोटा, यहाँ पर लेस देन साइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट, ओके। हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट बट लेस देन स्टॉप, ठीक है। स्टॉप इंक्लूड नहीं करना है, स्टॉप से कम वाले वैल्यूज ही यूज करने हैं हमें। ओके। या सो दैट इज यस। हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। या ऑलराइट, so let's move on to something called as loop control statements. अभी ये लूप तो ठीक है, ये एग्जिट, अगर मुझे एग्जिट करना है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ। लेकिन हो सकता है मुझे इसके अंदर कुछ चेक करना है, और वो चेक करने के बाद में आई हैव टू मेक अ डिसीजन टू इधर एग्जिट द लूप राइट देयर, या फिर मे बी स्किप रेस्ट ऑफ द कोड, ओके। तो दो तरीके के लूप कंट्रोल के स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब दो मेन है। दिस वन यू नॉट सी वेरी कॉमन, ठीक है। तो फर्स्ट इज ब्रेक, सेकंड इज कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब होता है जब आप लूप एग्जीक्यूट कर रहे हो और अगर आपने ब्रेक लिख दिया, इसका मतलब वो लूप तब के तब एग्जिट हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। कंटिन्यू का मतलब होता है जो बचा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट मत करो, नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाओ। जैसे कि ये एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने क्या किया, नंबर लिया इन रेंज 1 to 6। अगर नंबर की वैल्यू 3 हो जाती है तो मैं बोल रहा हूं कि कंटिन्यू करना है मुझे। कंटिन्यू का मतलब होता है ये नीचे वाला कोड कुछ भी रन मत करो और सीधा वापस नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाओ। ये कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है। स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वैल्यू। फिर नम 4 पे आऊंगा मैं सीधा, ठीक है। एग्जाम ये रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप करना रेस्ट ऑफ द कोड। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, नम की वैल्यू पहले 1 थी, तब ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद में 2 आई, तभी भी प्रिंट हो गया। फिर जब 3 आया तब मैंने बोला कि कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू का करना का मतलब क्या होता है, ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट मत करो, डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। 4 पे आया तो क्या हुआ, सबसे पहले प्रिंट हुआ। फिर मैंने चेक किया नम की वैल्यू 4 है क्या, अगर नम की वैल्यू 4 है तो ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब होता है इस पूरे लूप को एग्जिट करना है मुझे। मुझे पूरे 1 2 3 4 5 तक नहीं जाना है, मुझे 4 के बाद में टर्मिनेट करना है लूप को। लूप टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। लूप कंटिन्यू तब यूज करते हैं जब हमें रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं करना होता है, सिर्फ वहीं उसके उसके बाद वाला कोड स्किप करना होता है तब, ठीक है। सो दैट इज व्हेन यू यूज ब्रेक स्टेटमेंट एंड अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब आप एग्जांपल्स देखोगे तब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट एप्लीकेशंस, ठीक है। ये तो मतलब व्हेन ऐसे जब आप एग्जांपल देखोगे, जब आप खुद से कोड लिखना शुरू करोगे तब आप यूज करोगे इसको, और जैसे जैसे यूज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी फैमिलियरिटी बढ़ेगी उसके साथ में, और चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रोज कोड करके देखना है। जो मैं प्रॉब्लम्स आपको सेंड करता हूँ रोज के रोज, वो आपको कोड रन करके देखना है। वो अगर आप समझ भी नहीं रहे तो भी आपको रन करके तो भी देखना है वो कोड, स्पेशली जिनका आईटी बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों के लिए। जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे भेज रहा हूँ उसका कोड भी जब मैं भेजता हूँ, ठीक है, ये कोड को आपको एग्जीक्यूट करके देखना है। आपके कैगल नोटबुक में हो गया, या फिर अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया हो तो मैंने इंस्टॉलेशन बताया नहीं है अभी तक, नेक्स्ट फ्यू सेशंस में बता दूंगा। बट कैगल में आप रन कर सकते हो, कोड का ब्लॉक ऐड करो और एक कोड एग्जीक्यूट करो और समझो, यहाँ पर कमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एनीवेज, तो वो है कंटिन्यू और ब्रेक। और एल्स स्टेटमेंट तब यूज होता है जब आपको कोई ऐसा कोड एग्जीक्यूट करना है
जो लूप खत्म होने के बाद में एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, जब ये लूप खत्म हो जाए तब आपको अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है तो आप एल्स स्टेटमेंट में लिख सकते हो, या फिर आप ये प्रिंट एल्स निकाल दो और प्रिंट ऐसे डायरेक्टली भी लिख दोगे तो भी जब आपका लूप खत्म हो जाता है तभी वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो दीज आर द थ्री मेन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंटिन्यू, ब्रेक और एल्स। ऑप्शनल है, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शनल है, ब्रेक भी ऑप्शनल है, कंटिन्यू भी ऑप्शनल है। अगर आपको यूज करना है, अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है आपके कोड में तभी यूज करना है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो समझ लो। आपको लूप कंट्रोल करने के लिए यूज करना है इनको, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो हम लोग एग्जांपल देखेंगे एक, और ये एग्जांपल में कैसे कंट्रोल फ्लो यूज किया है वो समझेंगे एग्जांपल के साथ में। इमेजिन करो आप एक ग्रोसरी स्टोर हो और यूजर को शॉपिंग करने हैं आपको स्टोर से। ठीक है, आपके पास कुछ ग्रोसरीज है, यूजर आएगा, यूजर आइटम सिलेक्ट करेगा, यूजर बोलेगा कितने सिलेक्ट करने हैं मुझे आइटम्स, फिर आपको अगर डिस्काउंट देना तो डिस्काउंट अप्लाई करोगे, अगर यूजर के पास पॉइंट्स होंगे तो वो आप पॉइंट्स अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद में आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे और चेकआउट पे कितना पैसे देना है यूजर को वो बताना है आपको। दिस इज व्हाट दिस कोड इज गोइंग टू डू। ऑलराइट, ये स्टेप्स इन्वॉल्व है आपके, आइटम का सिलेक्शन, प्राइस का डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट अप्लाई करो, फिर फाइनल कॉस्ट कैलकुलेट करो और फाइनली चेकआउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे करना है, हमें कंट्रोल फ्लो कैसे यूज होता है इस केस में उसके बारे में पढ़ना है। सबको एक्सेस रहेगा इसका, यू जस्ट हैव टू गो एडिट एंड स्टार्ट यूजिंग इट। सेम यहाँ पर स्टेप्स लिखे गए हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिनेरियो एक्सप्लेन किया था, वही सिनेरियो यहाँ पे। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ सो दैट यू ऑल आर एबल टू रीड इट प्रॉपर्ली। सबसे पहले आइटम सिलेक्शन करना है। ठीक है, ये कोड, ये प्रोग्राम क्या करेगा, यूजर्स को पूछेगा कि कौन से आइटम्स यूज करने हैं और कितने क्वांटिटी में बाय करना है आपको। ठीक है? उसके बाद में हम लोग वैलिडेट करेंगे कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो आइटम सच में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर यूजर ने बोल दिया कि ग्रोसरी स्टोर में आके यूजर ने मेडिसिन मांगना शुरू कर देगा तो फिर यू कैन ऑब्वियसली टेल कि मेडिसिन यहाँ पे मिलते नहीं, तो आपको वैलिडेट भी करना पड़ेगा, राइट। तो वो वैलिडेशन, फिर प्राइसिंग एंड डिस्काउंट अप्लाई कैसे करना है, प्राइस हर एक का पता होना चाहिए और कितना अमाउंट यूजर ले रहे हैं उसके ऊपर से डिसाइड करना है आपको, डिस्काउंट कुछ लगाना है और फाइनली कॉस्ट कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है आपको, चेकआउट पे करना क्या है। तो दिस इज व्हाट दैट कोड लुक्स लाइक। लाइन बाय लाइन जाएंगे और सबको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है, दिस इज अ डिक्शनरी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। ये है आइटम के प्राइजेस। योर आइटम इज एप्पल, उसका प्राइस है 0.5, बनाना इसका प्राइस है 0.25, ऑरेंजेस इसका प्राइस है 0.75, ब्रेड का प्राइस है 1.5, मिल्क का प्राइस है 2.1। ऑल ऑफ दिस आर इन डॉलर्स यू कैन से। ओके, सबसे पहले हमने क्या बोला कि यूजर को सिलेक्ट करवाना है हमें, उसको कुछ खरीदना है केस में से, तो दीज आर द आइटम्स, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है, कोई ना यूजर बोलेगा कि ये ऐड करना है। तो एक वाइल लूप लिखा है यहाँ पर, ये वाइल लूप ट्रू रहेगा हमेशा। ठीक है, कीप ऑन गेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम यूजर। इनपुट, जब मैं कुछ ऐसे करता हूं तब यूजर टाइप कर सकता है, आई एम टेकिंग ए यूजर इनपुट हियर। दिस इज हाउ यू टेक अ यूजर इनपुट बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। इनपुट जैसे आपने प्रिंट यूज किया ना वैसे इनपुट, प्रिंट आपको आउटपुट प्रिंट करेगा, इनपुट आपको यूजर से टाइप करके देगा, एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाएगा तो उसके अंदर टाइप करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एंटर द आइटम नेम, अगर आपका हो गया तो यू कैन जस्ट एंटर डन। ठीक है, अगर यूजर ने डन बोला तो ब्रेक करना है, ये वाइल लूप से हमें एग्जिट एग्जिट करना है। अगर यूजर ने डन नहीं बोला है तो फिर क्वांटिटी कितने चाहिए यूजर को वो हमें इनपुट लेना है फिर से। ठीक है, इस बार हमें इंटेजर इनपुट लेना है, ऐसे नहीं कि यूजर बोलेगा कि उसके 1.5 बनाना चाहिए, 2.5 ऑरेंजेस चाहिए, ऐसे नहीं, इट हैज टू बी एन इंटेजर। तो दिस इज हाउ आई कन्वर्ट द इनपुट इनटू एन इंटेजर। ठीक है, इंटेजर न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक वैल्यू कुछ तो प्रिंट इनपुट करेगा, एंड दिस इज हाउ यू टेक द वैल्यू।
क्वांटिटी, फिर जो भी आइटम सिलेक्ट किया यूजर ने उसको हमने एक लिस्ट में ऐड करना शुरू कर दिया। ठीक है, वी अपेंड इट, वी से यूजर ने आइटम ये सिलेक्ट किया और इतनी क्वांटिटी, और इसको लिस्ट में मैं ऐड करते जाऊंगा एक 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 एक। ठीक है, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आपका। ठीक है, टू प्रिंट कार्ट, यूजर इसको कार्ट, यूजर का कार्ट है राइट वो, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट द कार्ट हियर। जो भी यूजर का कार्ट है उसको मैंने प्रिंट किया। एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, डबल कोट में लिखना है कार्ट, फिर ये कर्ली ब्रेसेस में लिखना है आपको वेरिएबल कौन सा प्रिंट करना है। मुझे ये वेरिएबल प्रिंट करना है एक सिलेक्टेड आइटम्स, तो वो वेरिएबल आपको ऐसे कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ये आपको पाइथन के नए वर्जन में दिखेगा, 3.6 वर्जन के बाद में। और हम लोग 3.6 वर्जन के आगे वाली वर्जन यूज कर रहे हैं पाइथन के, तो यू कैन सेफली यूज दिस एफ। ओके, एंड दिस इज मोर पाइथोनिक वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे प्रिंट दिखेगा, फिर यहाँ पर कुछ और लिखा हो रहेगा वेरिएबल्स वगैरह। ठीक है, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, कोई तो एक ही फॉलो करना है आपको। विल फॉलो दिस एफ स्ट्रिंग्स और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स ऐसे, कार्ट और ब्रैकेट में वैल्यू वेरिएबल। ठीक है, फिर कैलकुलेट क्या करना है, टोटल कॉस्ट कितना हुआ। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, आइटम का प्राइस लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। ठीक है, ये एक फॉर लूप लिखने का अलग तरीका है, मे बी आई शुड नॉट डू दिस, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। फॉर क्या करना है, आइटम है मेरे पास में और क्वांटिटी है, इसमें है ये वैल्यू इन सिलेक्टेड आइटम्स। सिलेक्टेड आइटम्स क्या है, मेरा एक सीक्वेंस है, मेरा कार्ट है वो अभी इस केस में। तो मैं बोलता हूँ टोटल कॉस्ट, शुरुआत में तो टोटल कॉस्ट 0 है, तो मैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, मैं ऐड करूंगा ऐसे, प्लस आइटम की प्राइस रहेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस विथ क्वांटिटी। तो मैंने एक फॉर लूप लिख दिया, दिस इज माय लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल फ्लो, एक फॉर लूप लिखा मैंने सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर, क्योंकि ये सीक्वेंस है, लिस्ट है राइट। सो ये लिस्ट है और ये लिस्ट में दो दो वैल्यूज ऐड की गई है। यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑल्सो। लास्ट सेशन में हमने देखा था कैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकता है। इस केस में वही किया है, लिस्ट के अंदर आपने एक्चुअली टपल डाला है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ टपल, लिस्ट के अंदर आपने टपल डाला है। ओके, सो वही किया यहाँ पर। ऑलराइट, टोटल कॉस्ट जो भी है वो कैलकुलेट की गई। फिर मैंने अगर $10 से ज्यादा कॉस्ट हो रहा है तो मैं उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोल दिया कि मेरे पास प्रमोशन चल रहा है, अगर आप 10% से $10 से ज्यादा स्पेंड कर रहे हो हमारे दुकान में तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। टोटल कॉस्ट में प्रिंट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैं पूछता हूँ यूजर को, आपके कोई लॉयल्टी पॉइंट्स है क्या। ठीक है, अगर लॉयल्टी पॉइंट्स होंगे तो फिर मैं चेक करूंगा 100 से ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट्स है क्या। 100 से ज्यादा होंगे तो मैं बोलूंगा कि आपको $5 का डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर $5 का डिस्काउंट मिल सकता है, आपके पास लॉयल्टी पॉइंट्स है इसीलिए, तो अप्लाई करना है नहीं करना है। अगर यूजर बोलता है अप्लाई करना है, इफ यूजर सेज यस, देन टोटल में से $5 माइनस कर दो। फाइनली यूजर को पूछना है आपको कैसे के लेना है, आपको क्रेडिट कार्ड लेना है कैश लेना है, और based on whatever method he says he is going to use, you will print something. So let's run this and then we'll come back to the code again. तो मैंने रन किया, आइटम्स के नाम यहाँ पर पूछ रहा है वो, तो आइटम कौन से है मेरे पास, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ब्रेड, तो मे बी आई जस्ट ऐड मिल्क हियर। मिल्क, कितना मिल्क, लेट्स से आई वांट 2 bottles of milk. Let's say I ask him ब्रेड नाउ। ठीक है, ब्रेड भी ऐड करना है, ब्रेड कितना ऐड करना है, मे बी 4 packs ऑफ ब्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद में एप्पल,
कितने एप्पल ऐड करने हैं? 5 एप्पल्स ऐड करने हैं। और लेट्स से आई से बनानास। अभी यहाँ पर एरर आ गया, ये क्या बोल रहा है? इनवैलिड आइटम। इनवैलिड आइटम मैंने वैलिडेशन किया है खुद से, करेक्ट, मैंने यहाँ पर वैलिडेशन किया है। अगर आइटम आइटम के प्राइजेस में प्रेजेंट नहीं है तो मुझे बताना है कि वो इनवैलिड वैल्यू है। और वैलिड वैल्यूज क्या है? या तो एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, फिर मिल्क। मैंने किया दिया बनानास। ठीक है, ये मैच नहीं है, परफेक्ट मैच, सो दिस हैज टू बी बनाना। तो उसको मैं बनाना बोलता हूँ, BANANA, बनाना। कितने क्वांटिटीज? 10 हियर, 10 बनानास। ठीक है, लेट मी पुट ऑरेंजेस ऑल्सो। ठीक है, ऑरेंज भी ले लेता हूँ। कितने ऑरेंजेस? मे बी आई वॉन्ट 15 ऑरेंजेस। ठीक है, आई एम डन। नाउ आई से डन। डन जैसे ही मैं बोलता हूँ, मेरा एक कोड एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर। ठीक है, आइटम की वैल्यू मेरी डन हो गई। डन का मतलब आई एम गोइंग टू ब्रेक। ठीक है, कंट्रोल लूप को कंट्रोल करने का स्टेटमेंट है ये ब्रेक। तो मैं ब्रेक करूंगा और मैं ये वाइल लूप को बाहर आ जाऊंगा। सो डन, एंटर। सो दिस इज माई कार्ट नाउ। ये कार्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया मेरा, करेक्ट। ये मेरा कार्ट है। कहाँ गया वो कार्ट? ये कार्ट है मेरा सिलेक्टेड आइटम्स का। ठीक है, जो एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर मैंने चीजें अपेंड करते गया हूँ यहाँ पर, एक 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 एक, जैसे जैसे यूजर इनपुट कर रहा है। तो दिस इज माई कार्ट राइट नाउ। मिल्क कितने हैं? 2। ब्रेड कितने हैं? 4। एप्पल कितने हैं? 5। बनाना 10। ऑरेंजेस 15। ठीक है, कॉस्ट है टोटल मेरी $23, विच इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, मतलब इसके ऊपर 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अप्लाई हो गया है। मैंने मे बी आई शुड हैव डन दिस। बिफोर डिस्काउंट, डॉलर्स यहाँ पर। का मतलब होता है, आई जस्ट टेल यू व्हाट दिस इज। टोटल कॉस्ट एक फ्लोट है, और 2f का मतलब होता है सिर्फ फ्लोट। आपका जो डेसिमल वैल्यूज है, सिर्फ 2 ही डेसिमल वैल्यूज प्रिंट करने हैं। सो दिस विल गिव मी ओनली 2 डेसिमल वैल्यूज। तो वही किया यहाँ पर 23.62। ओके, तो लेट्स से मेरे पास लॉयल्टी पॉइंट्स है 120। ये एंटर करता हूँ मैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, डू यू वांट टू अप्लाई द 5% डिस्काउंट, $5 डिस्काउंट? आई सी यस। फिर बाद में बोलेंगे व्हाट इज द टाइप। आई जस्ट से आई यूज द कैश। देन ही विल से इतना आपको काउंटर पे जाके पे करना है। ओके, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ओनली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, या फिर कंट्रोल फ्लो दैट दैट वी आर यूजिंग हियर। ठीक है, हमने यहाँ पे सब टाइप के कंट्रोल फ्लोज यूज कर लिए। हमने लूप कंट्रोल फ्लो यूज किया, हमने कंडीशनल कंट्रोल फ्लो यूज किया, हमने लूप कंट्रोल फ्लो के स्टेटमेंट्स यूज कर लिए। ठीक है, उसके बाद में अगेन सेम थिंग, दिस इज द कंडीशनल कंट्रोल फ्लो। ठीक है, तो सारी चीजें हमने यहाँ पर यूज की है, और वी हैव डेवलप्ड अ सिंपल ऐप जो एक शॉपिंग का सिनेरियो हैंडल कर रहा है। ठीक है? इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि इंस्टेड ऑफ हैविंग यूजर एंटर थिंग्स, मैं ड्रॉप डाउन दे दूं। मेरे लिस्ट में से क्या सिलेक्ट करना है उसको ड्रॉप डाउन दे सकता हूँ मैं। फिर क्वांटिटी के लिए भी प्लस माइनस ड्रॉप डाउन दिए जा सकते हैं। और उसके बाद में कार्ट में क्या दिख रहा है बार बार हम लोग दिखा सकते हैं उसको, राइट। ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ UI, या फिर पार्ट ऑफ मेकिंग इट प्रिटी। बट जो आपकी कोर फंक्शनैलिटी है वो तो आपको दिख रही है यहाँ पे सीधा सीधा, करेक्ट। एंटर करो, क्वांटिटी बताओ, एंड देन दिस इज हाउ यू बिल्ड अ वेरी सिंपल शॉपिंग ऐप। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ अभी।
Okay, save is complete. अगर आप अभी इस पे क्लिक करते हैं तो you should be able to see it. Let's go to, sorry, ये आपको स्लाइड में मिलेगा, राइट? तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ. दिस इज हाउ इज, जो सेव किया वो दिखेगा आपको यहाँ पर. आउटपुट पूरा सेव नहीं हुआ, बट आपको एनीवेज एडिट करना पड़ेगा और ये पूरा कोड आपको लाइन बाय लाइन समझना है, ठीक है? नॉट जस्ट रन इट ब्लाइंडली, बट लाइन बाय लाइन समझ लेना है आपको एग्जैक्टली कौन सा लाइन कब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा. ओके, वी यूजुअली डोंट शेयर रिकॉर्डिंग फॉर द सेशंस, बट आई थिंक दिस माइट बी यूजफुल फॉर यू, ताकि आप बार बार रिविजिट कर सको कंट्रोल फ्लो को और कंट्रोल फ्लो समझ सको, ठीक है? ये हमने सबसे पहले वायर फ्रेम बनाया, कोड में करना क्या क्या है, उसके बाद में हमने कोड किया, ठीक है? नेवर जंप डायरेक्टली डूइंग द कोड. सबसे पहले समझ लो आपको करना क्या है, ठीक है? मे बी ऐसे डायग्राम बनाओ या फिर ऐसे लिख लो आपको करना क्या है, उसके बाद में कोड करने के लिए जाना है आपको, ठीक है? All right, now let me just make sure. So this is what happens whenever I tell that I'm going to share the recording, people will start to drop out of the session. I just now saw 2 people dropping out. That's why we don't share the recordings. Anyways, I'll share this recording because I told that I'll be sharing.